Good morning, students. Welcome to you in your political science class. And in the last class, we started our chapter number 4, that was social justice. And in that part, we started the meaning of justice, what is justice, and other parts of the justice, like the three parts: equal treatment for equal, then proportionate justice, and one special representation to some needy. तो हमने इस तीन बातों की बात की. तो मीनिंग ऑफ जस्टिस को अगर हम लें तो जस्टिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड जस, दैट इज बोन्ड. इट मीन्स द रिलेशन ऑफ वन पर्सन with other individual in different form. This relation can be of social one, political, moral. किसी तरह से अगर जो एक पर्सन के जो रिलेशन है दूसरे के साथ, what type of relation an individual has with other individual. And in that we talk कि how in the ancient India, according to dharma, the king should protect the dharma or provide social justice to the people. Then in China, Confucius, a philosopher, also gave his views about justice. Then Plato, in his book The Republic, had given the views about the justice, how to create a just or fair society. Then we divided the part into three different subparts. First one, equal treatment for equal, means no discrimination with anyone. Second one, proportionate justice. Proportionate justice means that the person should be given justice according to the efficiency or the capability. Then recognition of special needs, in which we talk about that the special or underprivileged people should be given special seats or special reservation, and that is the recognition of special needs. Today we are going to start the second part of the chapter, that is the just distribution, and one important theory related to the justice, that is given by John Rawls. John's Rawls theory of justice. So what is just distribution? जब हम एक समाज की बात करते हैं कि just distribution should be there in the society. So what's the meaning of just distribution? ये just distribution जो है वो क्या है? देखिए, अगर हम बात करें social justice also concern that just distribution of goods and services, whether it is between the individual, it is between the different type of groups and different type of individuals within a society. तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे मीनिंग पहला क्या है कि जितने भी ग्रुप्स हैं एक सोसाइटी में, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं एक सोसाइटी में, उनको उनके लिए जो डिफरेंट गुड्स हैं और डिफरेंट सर्विसेज हैं उनकी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए. Suppose if there are serious economic and social inequalities in a society, अगर समाज में social और economic inequalities हैं, it might become necessary to try and redistribute some of the important resources in a society to provide something like a level playing field for citizens. अगर समाज में कुछ सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं तो पहला वर्क जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में पहला पॉइंट क्या आएगा कि उनकी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, मीन्स उन इनइक्वालिटीज को रिमूव किया जाए ताकि जो एक ग्राउंड है वन लेवल प्लेइंग, जैसे वन ग्राउंड हम खेलने से पहले चाहते हैं कि एक गेम विल बी गुड if the ground
playground will be a level one. In the same way, if we want that just distribution should be there, तो उसके लिए जितनी भी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मीन्स उनको हटा दिया जाए। ठीक है, कि रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अगर जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं उनको उन इनइक्वालिटीज को रिमूव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज विदिन ए कंट्री, अगर हम एक कंट्री की बात करें तो सोशल जस्टिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली द पीपल बी ट्रीटेड इक्वली इन टर्म ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सोशल जस्टिस क्या रिक्वायर करता है कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही इक्वल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, बट डिसाइड दिस सम बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके साथ साथ कि खाली जो है वो लॉ एंड ऑर्डर ही सोसाइटी में ना मेंटेन किया जाए, बट इसके साथ द सम पीपल दे एंजॉय सम बेसिक इक्वलिटी ऑफ द कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि उनको इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, in our country, equal opportunities that is given by one fundamental right to equality, which is given in our constitution from article 14 to 18। जो हमारा 14 to 18 आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग नॉट ओनली रूल ऑफ लॉ इज सेटअप, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर राइट टू इक्वलिटी, बट बिसाइड rule of law, equal opportunities, equal chances, equal treatment should be given to maintain or to establish social justice। जैसे कि अगर हम समाज की बात करें, हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी व्हिच वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम। The lower caste people cannot enter in the temples, public places, restaurants, hotels, clubs or in parks. Now this has been abolished. If anyone practice it, that person have to be given fine or imprisonment for 6 months। अगर कोई जैसे अनटचेबिलिटी को हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉलिश कर दिया गया है, अगर कोई भी पर्सन इसको प्रैक्टिस में लाता है तो उस पर्सन को 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट विद दैट उसको फाइन जो है वो भी देना पड़ेगा। और तो उसको इन दिस वे द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी देयर। और आफ्टर दैट अगर हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो इन इंडिया द स्टेट गवर्नमेंट आर टेकिंग सो मेनी स्टेप्स फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। As so many reforms, institutional land reforms were being made by the government, especially by the state government, to redistribute the lands which was controlled by the some rich people। उसके बाद अगर हम बात करें तो difference of opinion on matter whether how to distribute resources and ensure equal access to education and jobs। तो कैसे अब ये इसकी कैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल रिसोर्सेज की कैसे होगी। अगर हम बात करते हैं कि इक्वल रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, खाली लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज की कैसे होगी और कैसे जो है लाइक एजुकेशन, जॉब्स, अगर हम इन सारों की बात करें तो वो कैसे इक्वल हो सकते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाती है तो उसके बाद अगर सब जो कुछ लोगों के लिए रिजर्व सीट्स कर दी जाती हैं, कुछ लोगों को जो प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेशल नीड की अगर हम बात की, जैसे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सम रिजर्वेशन इज देयर फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, फॉर द वीकर क्लासेस, लेकिन अगर ऐसा सेटअप किया जाता है, रिजर्वेशन की जाती है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी सेटअप की जाती है, जैसे कि हमारी लोकसभा में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कर दी जाती हैं, तो इससे क्या होगा कि इट कैन ऑल्सो लेड टू द वायलेंस इन द कंट्री, सम प्रोटेस्ट कैन बी देयर विच वाज देयर, जो कि हमारे ही कंट्री में हो चुका है। For example, when the Mandal Commission was set up,
in India for deciding the reservation for SCs and BC. जब मंडल कमीशन अंडर वीपी सिंह जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे विशव प्रताप सिंह उनके अंडर बनाया गया, तो उस मंडल कमीशन ने अपनी जब सजेशंस दी कि 27% रिजर्वेशन शुड बी देयर फॉर दी SCs एंड ST, तो उसके बाद इट लेड टू वायलेंस बाय द यंग पीपल इन इंडिया और many people at that time destroyed the public property like trains, buses and all that. तो अगर हम ये कहें कि जो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और इक्वल के बाद अगर कैसे प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन को के बाद जो स्पेशल नीड्स हैं उनको स्पेशल रिजर्वेशन हो, इट कैन ऑल्सो लेड टू वायलेंस इन द कंट्री. एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी we should be abide to calmly examine the issues involved in term of our understanding of the principle of justice. तो उसके बाद अगर हम एक स्टूडेंट पॉलिटिकल थ्योरी के नाते हम कहेंगे कि जो स्टूडेंट है पॉलिटिकल थ्योरी का, तो उसको जस्टिस के बारे में पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए. तो जॉन रॉल्स जो है वो उन्होंने अपना व्यूज़ दिए इसके बारे में कि हाउ देयर कैन बी रैशनल जस्टिफिकेशन फॉर एक्नॉलेजिंग द नीड्स टू प्रोवाइड हेल्प टू द लेस प्रिविलेज्ड मेंबर ऑफ द सोसाइटी. उन्होंने कहा कि कैसे जो लेस प्रिविलेज्ड सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके लिए कैसे जस्टिफिकेशन हो सकती है, कैसे उनके साथ जो न्याय है वो हो सकता है. क्योंकि ऐसे तो अगर हम रिजर्वेशन नहीं करते उनके लिए तो दे विल नॉट बी प्रोवाइडेड सम टाइप ऑफ फैसिलिटी. अगर प्रोवाइड कर दी जाती है तो उससे नुकसान क्या होता है कि जो सेक्शन जनरल कैटेगरीज हैं देयर कैन बी प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन फ्रॉम दैट साइड और उनकी तरफ से भी रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो सकता है. तो जॉन रॉल्स जो है उसने अपनी थ्योरी दी जस्टिस के बारे में. जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस वो क्या थी, उन्होंने कहा देखिए अगर हम सिंपल बात करें तो मेनी पीपल अगर लोगों को कहा जाए द पीपल आर आस्क्ड टू चूज द काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच दे वांट टू लिव. अगर हम समाज में कहें कि लोग कैसे समाज में रहना चाहते हैं तो लोग क्या करेंगे, दे आर लाइकली टू लिव इन ए सोसाइटी इन विच द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी अफोर्ड देम ए प्रिविलेज्ड पोजीशन. तो वो चाहेंगे कि ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो एंड और रूल्स एंड रेगुलेशन जो है दे अफोर्ड दैट दे ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन which can be there in a society which allowed them in a privileged position, जो उनको privileged position में रखना चाहते हैं. तो ऐसे में अगर हम बात करें देखिए अगर हम अपने ही ज़्यादातर हम देखते हैं कि कोई भी लोग जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को जो है उसको कभी भी साइड में नहीं रखते. हमेशा ही एवरीवन जो भी सोचता है उसको लगता है कि अपना इंटरेस्ट जो है उसको सामने रख के क्यों भी किया जाए. ठीक है, अगर हम चाहते हैं देखिए अगर इफ द चिल्ड्रन जो है हम देखते हैं कि वी ऑफन एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू थिंक ऑफ एंड सपोर्ट व्हाट इज़ गुड फॉर देयर चिल्ड्रन. हम सोचते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों की अच्छाई के लिए ही करना चाहिए और बच्चों की अच्छाई के लिए ही वो करते हैं. लेकिन but such perspective cannot form the basis of a theory of justice of a society. तो हम वो अपने ही वेलफेयर के लिए सोचेंगे, अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए सोचेंगे, कोई भी पर्सन जो है अपने वेलफेयर को छोड़ के नहीं सोचेगा. तो कैसे, हाउ डू वी रीच a decision that would be both fair and just. तो हम कैसे एक डिसीजन पे पहुंचेंगे कि एक डिसीजन फेयर और जस्ट कैसे हो सकता है. तो जॉन रॉल्स जो है उसने ये कहा द ओनली वे कि एक समाज जो है वो जस्ट और फेयर कैसे हो सकता है, ही हैड गिवन द रूल कि द ओनली वे वी कैन अराइव एट ए फेयर एंड जस्ट रूल इज इफ वी इमेजिन आवरसेल्फ टू बी इन ए सिचुएशन in which we have
to make decision about how society should be organized. देखिए उसने क्या कहा कि अगर हम चाहते हैं जस्ट और एक फेयर सोसाइटी के लिए होनी चाहिए, तो हम ऐसी सिचुएशन में इमेजिन करें अपने आप को कि जिसमें कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सा समाज बने, तो इसके लिए हमें ये सोचना है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले खुद हैं। और अगर हम ऐसा सोचेंगे कि सोसाइटी जिसमें हम रहना चाहते हैं हमें ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने, तो उसने कहा कि ऐसा होना चाहिए। तो और इसके लिए देखिए हम ये ना सोचें, अगर हमें तो वी डोंट नो, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वी विल बी born in, whether it will be a rich family, whether it will be a poor family, whether it will be a privileged one, whether it will be underprivileged, और whether it will be a higher caste or low caste। अगर हमें बिल्कुल भी इसका नहीं पता कि हमें किस टाइप की सोसाइटी में हमारा बर्थ कौन होगा, तो उसने कहा कि वी डोंट नो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी विल बी लाइकली टू सपोर्ट a decision about the rules and regulation of the future society which would be fair for all the men। तो हम जब हमें पता ही नहीं होगा और हम खुद रूल्स बना रहे हैं कि हमें कैसी सोसाइटी के लिए ये रूल होंगे, तो नेचुरली वो क्या होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो फ्यूचर सोसाइटी के लिए होंगे वो सबके लिए फेयर होंगे, सबके लिए इक्वल होंगे। तो उसलिए इस चीज़ को उसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशन हम बना रहे हैं सबके लिए, लेकिन हमें पता नहीं उसके बारे में, ठीक है, कि वो सोसाइटी कैसी है। हमें सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए बोला गया है और हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन को बना रहे हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होगा वो फेयर होंगे सबके लिए। तो ही हैड गिवन दिस व्यू अंडर ए वन प्रिंसिपल बिल ऑफ इग्नोरेंस, BEIN, ऑफ बिल ऑफ इग्नोरेंस। इसका मतलब है इग्नोरेंस, बिल का मीनिंग ऑफ लाइक कर्टन ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा हट जाना। तो इसके लिए उसने क्या कहा कि थिंकिंग शुड बी, द पर्सन शुड थिंक अंडर ए वेल ऑफ इग्नोरेंस। उसने ऐसी सिचुएशन ही एक्सपेक्ट दैट इन सच ए सिचुएशन of complete ignorance about our possible position and status in a society। तो हम ऐसे ही इग्नोरेंस में ही हम जो है पॉलिसीज बना रहे हैं, इग्नोरेंस में ही हम जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं। और तो ऐसे में क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, इट वुड मेक सेंस फॉर ईच पर्सन एक्टिंग इन हिज और her own interest to try to think of the rules and regulation that will ensure reasonable opportunity to the weaker section of the society। ऐसे में जो पर्सन रूल्स बनाएगा, जो पॉलिसीज बनाएगा, each person try to think of the rules and regulation और the opportunity, तो हर पर्सन जो है उन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेगा जो weaker section के लिए होंगी। That will be in the form of education, health, shelter and for the weaker section of the society that should be available to all person if they are not part of the upper class। अगर वो upper class का part नहीं है, if they are the weaker section of the society, they will make policies for the rich people, will make policy for the weaker section in education, in for the welfare of their health, their shelter और है। तो ऐसे में उसने कहा कि इग्नोरेंस का पर्दा है जो कि एक पर्सन पे होगा कि उसको पता ही नहीं कि वो कैसे समाज के लिए बना रहा है, और उसको इग्नोरेंस का पर्दा रखना है और उसने ऐसे रूल्स बनाने हैं जो कि जिसमें कि जो जस्ट हो, जो कि वीकर सेक्शन के लिए भी हो। तो वैसे ऐसे उसने ये भी कहा नॉट ईजी टू अरेज आवर आइडेंटिटी, हम अपनी पहचान को इरेज नहीं कर सकते, एंड वी इमेजिन आवर सेल्फ अंडर ए व्हील ऑफ इग्नोरेंस। हम बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम अज्ञान जो इग्नोरेंस के व्हील में रहें, इग्नोरेंस के पर्दे में रहें, हमें अपनी आइडेंटिटी का याद ना रहे। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, इट इज़ डिफ़िकल्ट
for most of the people to be self-sacrificing and share their good fortune with stranger. बहुत मुश्किल है कि हम स्ट्रेंजर के साथ अपना गुड्स जो है वो शेयर करें, ये सेल्फ सेक्रीफाइसिंग करें. उसने कहा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट आवर आइडेंटिटी और इरेज आवर आइडेंटिटी. लेकिन बट इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि इसका मेरिट्स भी होंगे. वट विल बी द मेरिट्स ऑफ इग्नोरेंस? द मेरिट ऑफ इग्नोरेंस will be that it expect people to be just be their own usual rational themselves. इसका ये है, the merit of the veil of ignorance will position is that it expect people to just be their usual rational themselves. They are expected to think for themselves and choose what they regard to be their interest. तो ऐसे में उसने कहा कि इसका फ़ायदा भी होगा क्यों ये it expect people to just be their usual rational selves. They are expected to think for themselves and choose what they regard to be in their interest. लेकिन अब जो उसके व्यूज़ हैं हम ये कह सकते हैं, wearing the veil of ignorance is the first step in arriving a system of fair rules and policies. अज्ञानता का पर्दा डालना ही एक पहला स्टेप होगा अगर हम चाहते हैं कि एक जस्ट समाज हो, एक पॉलिसीज जो हैं वो फेयर हो और रैशनल पर्सन्स वुड not only see things from perspective of worst off, but they try to ensure that policies they frame benefit the society as a whole. जो रैशनल पर्सन होगा वो चीज़ों को खाली अपने वर्स्ट ऑफ के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेगा, बट दे टू इंश्योर वो ये भी इंश्योर करेगा द पॉलिसीज दे फ्रेम बेनिफिट द सोसाइटी एज ए होल, कि जो पॉलिसीज बनेगी वो पूरी सोसाइटी को फ़ायदा ही करेगी. एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल दैट सोसाइटी एज ए होल शुड बेनिफिट फ्रॉम द रूल्स. ठीक है, कि जो सारे लोगों का इंटरेस्ट है, पूरे लोगों का इंटरेस्ट है सोसाइटी का एज ए होल, उससे सबको बेनिफिट होगा फ्रॉम द रूल्स, नॉट द वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इससे खाली जब जस्ट एंड रूल्स बनाए जाएंगे और इग्नोरेंस के अवेयरनेस में बनाए जाएंगे तो उससे एक सोसाइटी के ग्रुप को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उससे होल सेक्शन को फ़ायदा होगा. और सच फेयरनेस would be the outcome of national action, not benevolence for the one section. In this way, Rawls जो थे उन्होंने आर्ग्यूज किया that rational thinking could lead us to be fair and judge impartially through regarding how to distribute the benefits and burden of a society. तो जो rational thinking होगी उनके अकॉर्डिंग that would lead us, इससे क्या होगा, एक fair और जो it will lead to fair impartially society. It will benefit the distribute the benefits and the burdens of a society. इससे अब जब रैशनल थिंकिंग हो जाएगी तो जितने भी बेनिफिट्स हैं सब तक पहुँचेंगे और इसके साथ साथ जो बर्डन है वो भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सोसाइटी का. सो इन दिस वे दिस वाज द जॉन रॉल्स थ्योरी जो कि हमने अभी की. और बट द वन अनदर पार्ट इज ऑल्सो रिमेनिंग ऑफ दिस चैप्टर. वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. All of you are supposed to read the chapter, complete the assignment and revise the work.